A warm greeting to one and all. Dear friends, myself Dr. S. B. Kishore, welcome you all. So as all of you have cleared your examination, 12th board examination, 10th board examination, and some of you have already cleared the graduation first year, second year and PG first year. Now from this year we are going to start what the online registration of our college. So how to fill this online registration and what are the procedure that you need to follow in order to fill this registration form. So we will see it. So we will see all this step by step. So first of all, open your web browser. So here we will type the web address of Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur, that is spm.ac.in. Now remember, dear friend, the procedure for filling the online registration is almost same throughout the Gondwana ICT Gadchiroli. Okay, so step that I am explaining over here you can follow in your college also. So after entering the website address of your particular college, what you need to do is that press enter key over here. So your college web address will get open, and then locate the registration form. So it might be possible that there may be an option. So in this case, see here we have what online registration, then junior college online registration, and then here online registration for the computer department. So it might be possible that in your college too they are following this kind of approach, or a single registration form may be used for filling the information for all the courses. Okay, so we will take an example for filling the word graduation. So click on the online registration. So you will get the screen something like this. Okay, and here you are supposed to type username and the password and then sign in. But before that, what you need to do is that you need to register yourself first. So click on register now. Since we don't have our username and password, so we will start with what? Register now. Then here you need to fill certain basic information. For example, email ID, then your mobile number, then the username that you would like to have for yourself. Remember, you need to remember this user ID and password for entire your academic period. So let's say Anand Kishore @14. Then enter the password. Remember the password, don't forget. It is a case sensitive, so be careful. It means if you are written in a capital and small, it will treat it as a differently. Okay, so be careful while specifying your username and the password, and note it down somewhere or remember it for the forever. After filling all this information, click on register button. So it is showing a message, registered is successfully. Okay, and the detail has been sent on your email and mobile number. So click on OK, and now you can start filling the form. So for that purpose, remember your the username, and then enter your password. Click on a sign in button. Then you will get the screen something like this. Here a procedure has been given, online procedure, Pravesh Prakriya 2020-21. Okay, so detailed information has been given, so you just read it. Okay, the major important point over here is that you need to scan the color passport photo and your signature. आपले फोटो आणि आपली स्वाक्षरीला काय करायचं आहे, स्कॅन करून घ्यायचं आहे आणि त्याची साईज 25 KB पेक्षा जास्त नसावी. Similarly, I will request you to have your following documents scan one: your 10th mark sheet, your 12th mark sheet. Okay, if you are taking the admission for the 11, then in that case 10th mark sheet. In case of taking the admission for the graduation first year, in that case you need to scan your 10th and 12th mark sheet.
Then if you are taking the admission for in PG, in that case 10th, 12th and all the graduation mark sheets. Apart from that, you need to scan your color photo, then your signature and TC and migration certificate. So these are the some of the documents that you required during the registration of your online form. So you can perform all this activity before starting the filling this form. So what you need to do is that, see, I have created one folder over here, and here I have put all the documents. See what it contains: 10th mark sheet, 12th mark sheet, Aadhaar card, then migration certificate, then photo, then signature and TC. So these are the documents that you need to scan. So make it beforehand before filling the your online registration form. Observe that signature is of what 5 KB, photo is of 18 KB. मतलब ये सब डॉक्यूमेंट पहले से ही आप स्कैन करके रख लो, ताकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब आपको कम से कम टाइम में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा भरना हो जाएगा. मतलब दैट इज ओनली बेसिक थिंग, ओके, नथिंग एल्स. देन यहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन दी कि जब आपका पूरा फॉर्म भर देंगे, आफ्टर फिलिंग व्हाट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको क्या करना है, उसकी हार्ड कॉपी लेना है, और हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट लेके कॉलेज कमिटी, एडमिशन कमिटी के पास जाके, उनके पास जाके अपनी एडमिशन कंफर्म करानी है. ओके, सो देन यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. नाउ ऑब्जर्व दैट यहाँ पे लेफ्ट टैब, लेफ्ट पैन में आपको क्या आ रहा है, इतने सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है. याद रखिए, पर्सनल डिटेल्स, देन कॉन्टैक्ट डिटेल, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, एजुकेशनल डिटेल. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आप ग्रेजुएशन एडमिशन ले रहे होंगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे, 10th एंड 12th की डिटेल. अगर आप 11th में ले रहे होंगे तो आपको 10th की डिटेल, और पीजी में ले रहे होंगे तो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन. देन डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है. देन आप जो एडमिशन ले रहे हो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले रहे हो उसके बारे में आपको डिटेल देना है. देन फोटोज एंड सिग्नेचर की इन्फॉर्मेशन. फाइनली मेक पेमेंट, कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन, एंड फाइनली आपको प्रिंट लेना है. ओके, जब तक आपका पहला स्टेप खत्म नहीं हो जाता तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते. ओके, तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वन बाय वन. पर्सनल डिटेल, सिलेक्ट द कोर्स जिसमें एडमिशन लेना है. देन क्लास आप सिलेक्ट करेंगे. देन टाइटल, मतलब यहाँ पे आप बताएंगे मिस्टर है, कुमारी है, मिसेस है, एंड सो ऑन. तो फॉर एग्जांपल मिस्टर. लास्ट नेम मतलब आपको सरनेम बताना है. आपको यहाँ पे टाइप करना है. याद रखिए, मैंने ऑलरेडी एक बार सैंपल किया था, इसलिए सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने आप आ रही है. ठीक है. देन जेंडर, मेल है, फीमेल है. देन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आपने जब ये रजिस्टर किए थे तो यही इन्फॉर्मेशन आपने फिल की थी. देन आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर. देन आपको बताना है नेशनैलिटी क्या है आपकी. देन रिलीजन, जो भी होंगे, क्रिश्चियन, हिंदू, इस्लाम एंड सो ऑन. सो सिलेक्ट व्हाट, जो भी आपकी रिलीजन है उसको सिलेक्ट कीजिए. देन आप कैटेगरी बताइए. जनरल कैटेगरी होंगे तो जनरल सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है तो उसको सिलेक्ट कीजिए. देन कास्ट कैटेगरी ओपन. देन उसमें आपकी सब कास्ट जो भी होंगे वो आप यहाँ पे बताएंगे, कास्ट. देन अगर आप माइनॉरिटी होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. अदरवाइज वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड एंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई ओवर ईयर. ओके. देन मदर टंग आपकी जो भी होंगी, मराठी, हिंदी, गुजराती, जो भी, उसका आपको करना है क्या, फर्स्ट लेटर टाइप कीजिए. अपने आप आपको पूरा स्क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन ब्लड ग्रुप. देन नाउ ऑब्जर्व डैट यहाँ पे ये स्टार दिया है, इसका मतलब ये फील्ड आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो. ठीक है. और यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, कंपलसरी चीज़ें नहीं की गई. अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कीप इट ब्लैंक. फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट का कोई अगर अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पे फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन मदर नेम. नाउ ये सब इन्फॉर्मेशन फिलअप करते समय याद रखिए कि आपकी टीसी में जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, वही स्पेलिंग यहाँ पे मेंशन करना है. देन एंटर फादर नेम, सरनेम, फादर नेम. देन ऑक्यूपेशन. देन डिसेबिलिटी अगर होंगे तो डिसेबिलिटी. देन आधार नंबर आपको बताना है. देन फैनुअल इंक, देन यहाँ पे आपको बताना है फैमिली एनुअल इनकम. देन अगर आपका इलेक्शन कार्ड नंबर होगा तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे. एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर. ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे
स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आप सेव करके चाहे तो आप बाहर मतलब लॉग आउट भी कर सकते हो और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप बाद में भी भर सकते हैं। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या रहेगी, सेव रहेगी। ओके, यहाँ पे लॉग आउट का बटन है, आप लास्ट में करेंगे। देन जैसे ही देखिए हमने पर्सनल डिटेल्स क्लिक किए, मतलब पर्सनल डिटेल्स में हमने इन्फॉर्मेशन फिल की है, अपने आप क्या हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल ओपन हो गया है। दैन कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ पे अपना एड्रेस बताएंगे, देन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंट्री, स्टेट, यम दबाइए महाराष्ट्र के लिए, एंड देन यम से स्टार्ट होने वाले सभी स्टेट यहाँ पे आ जाएंगे। देन डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, देन आपको सिटी स्पेसिफाई करना है। नाउ प्लीज़ रिमेंबर आपको इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में भरना है। ठीक है, मतलब पहले कॉलम पूरे ख़त्म करेंगे और फिर ये कॉलम में आएंगे। देन ये सब क्या है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपका ये दोनों अगर अलग अलग एड्रेस होगा तो आप यहाँ पे करेंगे, फिर से एक बार फिलअप करेंगे। देन फिर से सेव एंड नेक्स्ट। अभी हम आए हैं यहाँ पे लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे अपने आप क्या रहा है, ये बॉक्स आ रहा है। ये यहाँ पे जो स्पेसिफाई किए गए वो सब्जेक्ट ये पूरे स्टेट बोर्ड के हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके सीबीएसई के यहाँ पे पेपर ना हो, तो याद रखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं की गई, इसलिए आप यहाँ पे चाहे तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। देन बोर्ड जो भी होगा आपका, सीबीएसई अगर होगा तो सीबीएसई, अदरवाइज अगर आपका नागपुर डिवीजन पूना बोर्ड होगा तो आप वो वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन स्कूल का नाम, नारायण विद्यालयम। देन प्लेस कहाँ से है, चंद्रपुर। ईयर ऑफ पासिंग, देन टोटल मार्क्स कितने, आउट ऑफ कितने। ठीक है, मतलब 500 में से कितने मार्क्स मिले हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। परसेंटेज वो अपने आप खुद कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है टोटल मार्क्स और आपको कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। देन जैसे कि मैंने कहा कि ये इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट सीबीएसई वालों के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं है, फिजिकल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ फिलिंग 1 और 2 यू कैन कीप इट एंटायरली ब्लैंक, नो इशू। देन स्टैटिस्टिक नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे स्ट्रीम बताना है आपको। देन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके इसमें कुछ गैप है क्या, कि आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो, मतलब लास्ट ईयर अगर आपका कुछ गैप रहा होगा तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। ओके, देन सेव एंड नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे अभी एजुकेशन डिटेल्स आपको बताना है। एजुकेशन डिटेल्स हमने जो लास्ट टाइम बताए थे वो क्या था, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का, मतलब जिसके बेसिक पे हमको एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अगर 11th में लेने का होगा तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, 10th का डिटेल। अगर आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में लेने का होगा तो आप यहाँ पे 12 का डिटेल बताएंगे, और अगर आप पीजी में लेने का होगा तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल बताएंगे। देन एजुकेशन डिटेल में आपको क्या करना है, 10th ऑनवर्ड, 10th ऑनवर्ड आपकी पूरी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। देन ईयर ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ पासिंग 10th का। आप पूरे डॉक्यूमेंट साथ में रखिए ताकि आप जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन भर सके। रोल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमांक नंबर भी बोलते हैं।
पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपको मालूम हो तो आप यहाँ पे लिखिए, अदरवाइज आप यहाँ पे आप कंपलसरी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। देन मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स कितने मिले हैं 396 आउट ऑफ 500, तो परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। देन पास है कि फेल है स्टेटस आपको बताना है। देन क्रेडिट अगर होगा तो आप यहाँ पे बताएंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। देन ऐड पे क्लिक कीजिए और फिर HSC की इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो। देन बोर्ड CBSE स्कूल नारायणा विद्यालयम, एडमिशन 2018, ईयर ऑफ पासिंग, देन फिर से ईयर ऑफ पासिंग, एग्ज़ाम, रोल नंबर, ये सब डिटेल आप अपने पास में रखिए ताकि आप जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन भर सके। देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ कितना, ओके रिजल्ट बताइए यहाँ पे। एंड देन फिर से अगर आपके पास कुछ और होंगे तो आप इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 10th में मतलब आपका मैथ था क्या 12th में, तो यस होगा तो आप यस बोलेंगे, अगर नो होगा तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। ओके, ऐड कीजिए। एंड इस तरह से अगर आपका PG में एडमिशन ले रहे होंगे तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। ओके, एंड फाइनली सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गए हम डॉक्यूमेंट डिटेल में। तो डॉक्यूमेंट डिटेल में हमको क्या क्या सबमिट करना है, देखिए। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में ले लीजिए। 10th हमने ऑलरेडी स्कैन करके रखा है तो इसलिए जल्दी जल्दी होगा। इसके ऊपर ऐड पे क्लिक कीजिए। देन फिर से हम क्या करेंगे, 12th की मार्कशीट ब्राउज कीजिए। देन 12th की मार्कशीट पे क्लिक, ओपन, ऐड। देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब हमारी TC ब्राउज कीजिए, TC सिलेक्ट कीजिए, ऐड। देन आधार कार्ड ब्राउज, अगर आपके डॉक्यूमेंट सभी रेडी रहते हैं तो इट विल टेक नॉट मोर देन हाफ एन आवर टू फिल द एंटायर फॉर्म। तो अभी हमको फिलअप करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यस, ओके, ऐड। देखिए हमने कितने आधार कार्ड यहाँ पे हमने ऐड नहीं किए थे इसलिए वो ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे नीचे में हमको पता चलता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं। तो आधार कार्ड मतलब हमने ऐड पे क्लिक नहीं किया इसलिए वो ऐड नहीं हुआ है। आधार, ऐड। तो टोटल हम कितने डॉक्यूमेंट्स हमारे 5, 10th, 12th, TC, माइग्रेशन और आधार कार्ड। ना फिर से याद रखिए हमको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था इसलिए हमने क्या किया 10th एंड 12th की मार्कशीट अपलोड किए। अगर हमको 11th में लेने का होगा तो हम खाली क्या करेंगे 10 का ही लेंगे, और हमको PG में अगर लेने का रहा तो 10, 12th एंड ग्रेजुएशन ऑल। ओके, देन फाइनली सेव एंड नेक्स्ट। अभी हमको बताना है यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल, मतलब BCom फर्स्ट ईयर में हमको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो सबसे पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा लेना चाहते हैं आप, देन सेकंड लैंग्वेज आपके पास चॉइस है मराठी, हिंदी, सप्लीमेंट्री इंग्लिश, ओके। एंड देन आपके पास देखिए ये सब बाकी के डिसेबल है, मतलब इसका मतलब ये सब सब्जेक्ट क्या है कंपलसरी में है। यहाँ पे आपके पास चॉइस है मार्केटिंग लेना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना है, तो जो आपको लेना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। प्लीज़ रिमेंबर अगर कुछ डिसेबल है इसका मतलब वो सब्जेक्ट कंपलसरी में है। देन फाइनली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है ऑलरेडी, देखिए सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शनल सब्जेक्ट, सेव एंड नेक्स्ट। अब हमको यहाँ पे देना है फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो अपलोड कीजिए। देखिए यहाँ पे बताया गया कि इमेज फाइल की साइज़ कितनी रहनी चाहिए, मैक्सिमम 500 KB, और फॉर्मेट कौन सा रह सकता है JPG, GIF, PNG। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज अपलोड। ओके, सिमिलरली सिग्नेचर को हम अपलोड करेंगे यहाँ पे, ब्राउज, सिग्नेचर,
अपलोड एंड अगेन सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमको देना है पेमेंट डिटेल। आपका रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कितना रुपये बताया जा रहा है यहाँ पे 130। नाउ डिपेंडिंग अपॉन आप जो कोर्स ले रहे हो उसके हिसाब से आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी हो सकती है अलग अलग हो। फॉर अगर आप जूनियर में अगर एडमिशन ले रहे होंगे तो हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग हो। अगर आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ले रहे होंगे तो हो सकता है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग हो। तो जो भी होंगी, तो अब आपके पास चॉइस है ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। ठीक है, ऑफलाइन मतलब आपको कॉलेज में आके भरना पड़ेगा, ऑनलाइन मतलब आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, वेट फॉर 24 आवर्स इन केस ऑफ पेमेंट इज डिडक्टेड एंड नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है इसमें। ठीक है, 24 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा मतलब आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑफलाइन करके देखते हैं कि क्या होता है। ऑफलाइन में कंफर्म, यस, प्रोसेसिंग। ठीक है, देन बाय क्लिकिंग कंफर्म यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। आप यहाँ पे एक बार रिव्यू करके देख सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे कि क्या इंफॉर्मेशन आपने सबमिट की है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हैं प्रॉपरली एड्रेस आया नहीं आया, आपने तो जो सब्जेक्ट दिए थे वो सब आए नहीं आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या था, खाली इंग्लिश और लैंग्वेज ही था। बाकी हमारे जो सीबीएसई के जो पेपर थे वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप नहीं किए थे। अभी हम जिसमें एडमिशन ले रहे हैं, देखिए उसमें हमने फर्स्ट लैंग्वेज कंपलसरी इंग्लिश की है, सेकंड सप्लीमेंट्री इंग्लिश, देन बाकी के जो हमने यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा ऑप्शनल था। ओके, मतलब आपको करना क्या है, और इसके बाद हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो भी, उसकी भी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे अपने आप आ रही है। आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, और अगर आपको लगा कि कुछ गलत हुआ है, कुछ एड्रेस प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो आप फिर से यहाँ पे जाके, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डिटेल में जा रहे हैं हम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप पूरी डिटेल एक बार फिर से रीचेक कर सकते हैं, और बाद में जब आप कंफर्म हो जाते हैं तभी आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे होंगे तो आपको मिनिमम 24 घंटे बाद ही आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, तो मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे कंफर्म एप्लीकेशन। एक बार अगर आपने कंफर्म एप्लीकेशन कर दिए तो उसके बाद आप कोई भी चेंजेस यहाँ पे कर नहीं सकते। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, एक बार अगर आपने, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अगर आपने यहाँ पे कंफर्म कर दिए एप्लीकेशंस को तो उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कंफर्म कर रहा हूँ। मुझे एक मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू कैन नॉट अपडेट योर एप्लीकेशन वंस कंफर्म। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिए तो उसके बाद आप कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। ओके, क्लिक कर रहा हूँ मैं, एंड देन यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ठीक है, और आप यहाँ पे प्रिंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं, और ये प्रिंट जो आप लेंगे यहाँ पे, इसकी पूरी प्रिंट आउट लेके आप कॉलेज में जाके क्या करना है, आपको इसको सबमिट करना है। अगर आपके पास अभी घर में प्रिंट आउट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेव। ठीक है, इसके बाद आप इसकी प्रिंट आउट आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी आप प्रिंट आउट लेके कॉलेज में जाके आप क्या करेंगे, एडमिशन कमेटी के पास जाके आप अपना पूरा फॉर्म वहाँ पे कमेटी को दिखाएंगे, वो एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे। ठीक, और लेट मी रिवाइज। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसकी प्रिंट आउट लेके एडमिशन कमेटी के पास जाना है, उनके पास फॉर्म ये सबमिट करना है, और उसके आगे की डिटेल वो आपको अच्छे से समझाएंगे। सो विद डैट मुझे आशा है कि आपको पूरी स्टेप्स अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट अगर रेडी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, देन आपके फ़ोटो, सिग्नेचर,
देन आपके टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब अगर आपने ऑलरेडी स्कैन करके रखे होंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू फिल ऑल दिस फॉर्म. ओके, सो आप फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे. सो मुझे आशा है कि आपको पूरे स्टेप अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे.